Hello everyone, let us do a nice problem from Pathfinder from magnetic effects of current. So you should pause the video over here and try this problem. It's a very interesting question and it is just the right difficulty level for JEE Advanced, which is true for most of the problems in this section of the book, Build Your Understanding. So it is a great practice for the exam. So I will move into the solution now. And so we are given that in a region of space, a uniform magnetic field of induction B is established everywhere in the x direction, right? And from the origin, we have projected a particle which is of mass m and it has charge q, and we have projected it in a direction such that its velocity vector is in the xy plane and the angle made by the velocity vector with the x-axis is theta, right? Now, after an elastic collision with the plane, the particle loses half its charge and then returns to the point of projection, crossing the x-axis n times, right? So, of course, if the particle moves in this direction, it collides with the plane at some point because the plane is very large, right? So, it definitely will collide with the plane. And after an elastic collision with the plane, the particle loses half its charge and then returns to the point of projection, which means the origin. And in the process of coming back, it has crossed the x-axis n times. So we have to find the distance of the plane from the origin. So first of all, we have to understand that the path of the particle will be a helix. It will be a helical path. The previous question in the book, the problem number 13, is also based on helical path, and I have described the helical path in detail in that solution video. So you can watch that, and I will leave the link in the description. I've also copied like part of the explanation here, so we can start from the very basic understanding of magnetic force. The magnetic force is Q into V cross B. And if we break the velocity into two parts, V parallel and V perpendicular, and write the velocity like this as the sum of these two components, the V parallel cross B part goes to 0. We can open the bracket because cross product follows the distributive law. And therefore the velocity parallel component crossed with B gives 0 result, right? So सिर्फ V perpendicular वाला part बचता है, right? So we are only left with the V perpendicular part. So V parallel experiences no force. मतलब V parallel वाली जो direction है, उस direction में कोई force ही नहीं लग सकती due to the magnetic field, because force will be perpendicular to the field, right? So force जो मैंने ये दिखाया है, तो this is the initial direction of the force, right? Which will be in the minus z direction if the charge is positive. If Q is positive, if we take V cross B, V perpendicular cross B, we'll get a vector in the minus z direction according to these directions shown in the question. This is only the initial direction. So because of this force, because of the force of the magnetic field, the motion in the plane perpendicular to the field will be a circular path. So I've written that the motion of the particle is the superposition of two motions. तो परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट है उसकी वजह से एक सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा इस प्लेन में, और इस वाली डायरेक्शन में भी V पैरेलल वाली एक वेलोसिटी है, तो उस डायरेक्शन में एक कांस्टेंट स्पीड का मोशन होगा. उन दोनों को अगर सुपरपोज कर दें, वो दोनों चीज़ें साथ में हो रही हैं, अगर साथ में हो रही हैं, सो दैट विल प्रोड्यूस अ हीलिक्स. कि मतलब इस प्लेन में सर्कल में घूमे जा रहा है वाई जेड डायरेक्शंस में. सो लेट अस रेफर टू द डायरेक्शंस गिवन इन द क्वेश्चन. सो वाई एंड जेड वाला जो प्लेन है, वाई जेड प्लेन या उसके पैरेलल कोई भी प्लेन, मतलब बेसिकली वाई और जेड डायरेक्शंस में जो वेलोसिटीज़ हैं वो रोटेट करती रहेंगी, वो सर्कुलर पाथ को फॉलो करती रहेंगी, राइट? मतलब वो द वेलोसिटी यू कैन से दैट द वेलोसिटी कंपोनेंट इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड विच इज़ द वाई जेड प्लेन, the velocity component in the yz plane will keep rotating and the velocity component parallel to the field will remain preserved as it is. It will remain unaffected by the field, right? So that will produce a helical path, right? That will produce a helical path like this.
राइट। तो अब देखते हैं कि कोलिजन विद द प्लेन से क्या होगा. सो यू कैन ऑब्वियसली रेफर टू द प्रीवियस वीडियो दैट आई हैव मेंशन्ड, द सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम बिल्ड 13, एंड दैट विल टेल यू, वो पूरा सोल्यूशन अगर आप देख लेते हैं फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, तो उससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि हेलिकल पाथ क्या होता है. सो आफ्टर दैट यू कैन कम हियर एंड स्टार्ट फ्रॉम हियर. सो लेट अस गो टू द पार्ट वेयर द पार्टिकल कोलाइड्स विद द प्लेन. तो कोलिजन होगा तो क्या होगा. तो मैंने डायग्राम सामने से बनाया है. तो मतलब अगर ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में एक्स एक्सिस पे बहुत कोई दूर वाले पॉइंट पे चला जाता हूँ और वहाँ से इस डायरेक्शन में देखता हूँ अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस, तो मुझे ऐसी ही फोटो दिखाई देगी. द पाथ ऑफ द पार्टिकल इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, वो सर्कल दिखाई देगा और एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मेरे को दिखाई ही नहीं देगी बिकॉज आई एम लुकिंग directly in the direction of the x-axis. Now upon collision with the plane, the x component of the velocity of the particle will get reversed. x component reverse हो जाएगा because जब collision होता है, elastic collision होता है with a wall, with a fixed surface, तो जो component of velocity perpendicular to the surface होता है वो reverse हो जाता है as it is. मतलब magnitude unchanged and direction reversed. और जो पैरेलल वाला कंपोनेंट होता है वो रिमेन्स अनचेंज्ड, राइट. तो अगर ऐसा हुआ है तो मैंने लिखा है यहाँ से पढ़ भी सकते हैं. देयरफॉर द पार्टिकल वुड हैव रीट्रेस द एग्जैक्ट सेम हीलिक्स बैक टू द ओरिजिन. कि अगर सिंपल केस है कि मतलब हीलिक्स फॉलो करता हुआ पार्टिकल प्लेन तक गया और कहीं पे कोलिजन हुआ, मान लो यहाँ पे कोलिजन हुआ. दिस इज द पॉइंट इन द सर्कल वेयर द पार्टिकल वॉज व्हेन द कोलिजन हैपेंड. देन this velocity will remain unchanged. This is the velocity component parallel to the field, parallel to the x-axis वाला component. ये तो वैसा का वैसा ही रहेगा. मतलब जो velocity उसे circular path में घुमा रही है वो velocity तो unchanged रहेगी. तो circular path तो वैसे ही preserved रहेगा, बस x-axis वाला जो component है वो reverse हो जाएगा. तो helix को retrace करता हुआ particle वापस origin पे पहुंच जाएगा. But there is a difference here, and that difference is that due to the collision with the plane, the particle has lost half of its charge. Half of its charge has been lost. तो उसकी वजह से क्या होगा कि radius of the helix will double, right? Radius of the helix will double, right? क्योंकि basically जो perpendicular to the plane, perpendicular to the field वाले plane में जो circular path है उसका radius is given by this result, and this you should memorize. कि जो v परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, v परपेंडिकुलर इज द वेलोसिटी कंपोनेंट इन द एक्स वाई प्लेन. तो ये जो वेलोसिटी कंपोनेंट है ये v परपेंडिकुलर है. तो ये v परपेंडिकुलर के टर्म्स में द रेडियस इज गिवन बाय दिस. नाउ इफ द चार्ज हैज हाफ्ड, द रेडियस विल डबल बिकॉज ऑफ दिस रिजल्ट, एज यू कैन सी फ्रॉम दिस रिजल्ट. एंड बिकॉज द रेडियस डबल्स, तो सपोज अगर अब यहाँ पार्टिकल यहाँ पे था और कोलिजन हो गया, तो फिर उसके बाद रेडियस डबल होने की वजह से पार्टिकल विल फॉलो अ डिफरेंट सर्कुलर पाथ. तो वो कुछ ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर जाएगा. नाउ द रेडियस इज डबल, राइट. और वो इसी सर्कुलर पाथ में मूव करता रहेगा. मतलब द मोशन विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, वो मोशन ये सर्कुलर पाथ को फॉलो करता रहेगा. और एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल पीछे जाता रहेगा क्योंकि एक्स वाली वेलोसिटी रिवर्स हो गई है, राइट. तो एज यू कैन सी फ्रॉम दिस फिगर दैट द पार्टिकल कैन नेवर रीच द ओरिजिन, क्योंकि पार्टिकल तो एक्स एक्सिस को क्रॉस ही नहीं कर रहा है फिर से. सो सपोज कोलिजन अगर यहाँ पे हुआ तो देन पार्टिकल फॉलोज दिस सर्कल एंड इट इज नेवर क्रॉसिंग द एक्स एक्सिस, इट इज मूविंग अराउंड द एक्स एक्सिस, राइट. इस फिगर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. ये फिगर को इमेजिन आप कर पा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप इस फिगर को नहीं इमेजिन कर पा रहे देन यू शुड ट्राई टू इमेजिन इट फर्स्ट एंड देन बिगिन विद दिस एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द बिगिनिंग. पहले इस फिगर को आप अपने माइंड में बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए कि फिगर फ्रॉम विच डायरेक्शन आर वी लुकिंग. सो इफ collision happens here, then the particle follows a circular path like this, never strikes the x-axis again. If the collision happens here, then the particle follows a circular path like this, like, right. मतलब ऐसा बड़ा सर्कल फॉलो करता रहेगा. मैंने सर्कल थोड़ा करेक्ट नहीं बनाया, बट ठीक है, मतलब यू गेट द आइडिया. एंड देयरफॉर इफ
the collision, if the particle now while going back crosses the x-axis n times and reaches the origin, then the particle must have collided with the plane at the x-axis only. कि यहीं पे collision हुआ होगा अगर, तो ही फिर जो दूसरा सर्कल होगा वो x-axis से पास करेगा, क्योंकि दोनों सर्कल्स का एक ही कॉमन पॉइंट हो सकता है और वो कॉमन पॉइंट एक्स एक्सिस पे ही होना चाहिए अगर हमें चाहिए कि दूसरा सर्कल भी एक्स एक्सिस से पास करता है. Therefore, the collision must have taken place on the x-axis, and this is the crux. This is the main concept of the problem. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. So, अब इससे क्या हुआ कि x एक्सिस पे अगर कोलिजन हुआ, इसका मतलब वापस आते समय तो x एक्सिस से पे कोलिजन हुआ, उसके बाद सर्कुलर पाथ फॉलो करता रहेगा और वापस ओरिजिन पे ही पहुंचेगा. तो इसका मतलब ड्यूरिंग द टाइम इट कम्स बैक फ्रॉम द प्लेन टू द ओरिजिन, इट विल कंप्लीट एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ सर्कल्स. कि एक सर्कल कंप्लीट होने के बाद एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है, फिर दो के बाद भी फिर से एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है, एंड सो ऑन. और ओरिजिन तो एक्स एक्सिस पे ही लाई करता है. तो इफ इट हैज़ टू रीच द ओरिजिन and it has crossed the x-axis n times, it means it has completed n complete circles, n exact circles, and this will give us the distance between the origin and the plane. तो अगर ये डिस्टेंस l है और वापस यहाँ से हीलिक्स फॉलो करता हुआ पार्टिकल आता है ऐसे, राइट, सो इट फॉलोज हीलिक्स लाइक दिस इन द रिवर्स डायरेक्शन. तो पिच क्या होता है? पिच इज द डिस्टेंस अलोंग द एक्सिस. तो ये जो एक्स एक्सिस है, ये हीलिक्स की, इसको हीलिक्स की एक्सिस बोलते हैं. हीलिक्स की एक्सिस, जो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है हीलिक्स की, दिस इज द एक्सिस ऑफ द हीलिकल पाथ ऑफ द हीलिक्स. तो व्हाट इज पिच? पिच इज द डिस्टेंस द पार्टिकल ट्रैवल्स अलोंग द एक्सिस. एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रैवल जो डिस्टेंस है ड्यूरिंग द टाइम इट कंप्लीट्स वन कंप्लीट रोटेशन. तो अगर हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है और हमें पता है कि n सर्कल्स हो चुके हैं, तो डिस्टेंस n इंटू पिच हो जाएगा कि एक सर्कल में पिच के बराबर डिस्टेंस ट्रैवल किया अलॉन्ग द एक्स एक्सिस. n बार सर्कल करने में n टाइम्स पिच डिस्टेंस ट्रैवल किया. और पिच कितना होता है? पिच होगा टाइम पीरियड इंटू वी पैरेलल, कि ये वाला जो डायरेक्शन है मोशन का वापस आते समय, उसकी वेलोसिटी तो वी पैरेलल है, मतलब एक्स एक्सिस वाले कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज स्टिल वी पैरेलल, वो तो उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई बस. तो वेलोसिटी वी पैरेलल है और एक सर्कल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उस टाइम को वी पैरेलल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो डिस्टेंस आ जाएगा बिटवीन डिस्टेंस अलोंग द एक्स एक्सिस विच द पार्टिकल हैज ट्रैवल्ड बाय द टाइम इट कंप्लीट्स वन सर्कल. एंड टाइम पीरियड का ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि इन अ मैग्नेटिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर टू द फील्ड वाले प्लेन में पार्टिकल सर्कुलर पाथ फॉलो करते हैं तो उसका टाइम पीरियड ये होता है. और चार्ज हैज़ रिड्यूस टू q/2, सो q की जगह q/2 डाला हुआ है. सो वी गेट दिस आंसर. एंड v पैरेलल वाज u cos थीटा. सो v पैरेलल यहाँ से देख सकते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग कि दिस कंपोनेंट, द x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वाज u cos थीटा. Right, so this is the result. So it is a very instructive question. It teaches us the basics of the helical path in a magnetic field. तो इस बुक के ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं कि एग्जैक्ट एकदम बढ़िया डिफ़िकल्टी लेवल के होते हैं, जो आपको सिखा देते हैं, एकदम आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज कर देते हैं और आपसे कुछ नया भी पूछ लेते हैं, जिससे इफ़ यू गेट द आंसर करेक्ट तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बूस्ट हो जाता है. सो आई होप यू कीप कंटिन्यूइंग योर प्रैक्टिस एंड कीप प्रैक्टिसिंग सच गुड क्वेश्चंस फॉर JEE एडवांस्ड. आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है. बिल्ड योर अंडरस्टैंडिंग एंड MCQ पार्ट ऑफ दिस बुक इज़ सफिशिएंट फॉर JEE एडवांस्ड अगर आप कर लेते हैं. इनफैक्ट आप वो सेक्शंस भी पूरा कर लें तो मतलब तब JEE एडवांस्ड से ज़्यादा ही हो जाएगा, मतलब दैट इज़ सफिशिएंट. So I hope you keep practicing these type of questions and you keep boosting your confidence every day so that you do very well in your exam. And thanks for watching.